انہوں نے عمران خان صاحب کی محبت میں بنی گالا سے زمان پارک میں سائیکل پر سفر کیا ہے۔ سائیکل پر میں نے پہلے 750 کلومیٹر سفر کیا جنوبی پنجاب سے، اور خان صاحب سے ملنے بنی گالا گیا۔ جب سے شعور کا چہرہ چمکا ہے، ہلنے لگی ہے سرکار، کانپ اٹھے ہیں بد کردار۔ اس مرد کلندر کے ساتھ ہم آگے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ تو اخلاقی طور پر یہاں کے ہار چکے ہیں۔ یہ پی ڈی ایم سی ڈی ایم، یہ تو ہماری ان کی اب اوقات ہی نہیں ہے خان کے برابر کا نکلنے والوں۔ جی بالکل، میں جب سائیکل پر بنی گالا پہنچا تھا خان صاحب کے لیے، خان صاحب کو پتہ چلا تو میں جب اوپر گیا تو خان صاحب نے مجھے بلایا اور وہاں پر مجھے پیزا بھی کھلایا۔ ایک نواز شریف کی فیکٹری ہے سعودی عرب میں، ٹھیک ہے، ادھر ٹوٹل انڈین کام کر رہے ہیں، پاکستانی لکھا ہوا ہے ممنوع۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ارتضیٰ بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں آر پی پوڈکاسٹ۔ ناظرین سے موجود ہوں زمان پاک میں، ہمارے ساتھ چاچا اور بھتیجا موجود ہیں جناب۔ چاچا بھتیجا کی جوڑی اس وقت پاکستان تحریک انصاف میں سب سے مقبول جوڑی ہے۔ عمران خان صاحب سے ان کی بڑی ملاقات ہو چکی ہے اور جناب انہوں نے عمران خان صاحب کی محبت میں بنی گالا سے زمان پارک میں سائیکل پر سفر کیا ہے اور کشمیر بھی خان صاحب کے ساتھ سائیکل پہ گئے تھے۔ یہ ان سے پوچھیں گے خان صاحب سے اتنی محبت کی وجہ کیا کہ سائیکل پہ آپ لوگ جو ہیں بنی گالا سے لاہور زمان پاک پہنچے اور کب سے یہاں پہ مقیم ہے اور یہاں پہ ان کا مقصد کیا ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ جی سر، جی چاچا جی آپ ہیں نا؟ بالکل، چاچا پی ٹی آئی۔ چاچا کیا نام ہے آپ کا؟ شوکت حسین المعروف، چاچا پی ٹی آئی، ضلع لودھرا سے تعلق ہے میرا۔ اور میں خان صاحب کے، یہ میرا چادر چولا اور پٹکا اور یہ کھسا یہ میرا دیسی لباس ہے۔ دنیا کہتی ہے کہ یہ برگر پارٹی ہے، تو میں آج سے 15 سال سے جو ہے نا کراچی میں جب ایم کیو ایم کا راج تھا اور نواز شریف کے دور میں جب اس کا نام گو نواز گو کہنے پر ہمارا منہ چیر دیتے تھے اور منہ پر پکڑ کے ایسے جلسوں میں لاہور میں ہمارا منہ ایسے چیر دیتے تھے، تب بھی ہم نے گو نواز گو کہا تھا۔ اور خان صاحب کے عشق میں یہی ڈریس تھا میرا۔ میں سندھ بھی گیا ہوں جلسے پہ، سکھر بھی گیا ہوں، میں حلیم عادل شیخ کے پاس بھی دو تبدیلی بس میں رہا ہوں، اس کے 4 دن میں نے اس کے ساتھ کیا ہوں۔ ریلیاں بھی اٹینڈ کی ہیں کشمیر سے پاکستان تک۔ میری ایک خاموش نظریاتی جنگ ہے۔ تو جب میں بنی گالا میں گیا تھا، رجیب چینج ہوا، اس سے پہلے میں کشمیر بھی گیا تھا۔ جب مودی کشمیر کو ہڑپ کرنے کی کوشش کر رہا تھا تب میں کشمیر سائیکل پر گیا تھا اور دنیا والوں کو میں کہنے کے لیے کہ دنیا کے منصف و سلامتی کے محافظوں کشمیر جل رہا ہے۔ یہ میری پک آپ دیکھ رہے ہیں، ویسے بھی آئی ڈی آپ سرچ کر لیں۔ تو میں نے پیچھے گو انڈیا گو بیک لکھا ہوا تھا اور انڈیا کو میسیج دینا چاہتے تھے اور میں نے مودی کو پیچھے باندھا ہوا تھا اور مجھے اس پر غصہ تھا تو میں نے اس کو 1.5 لاکھ سے 2 لاکھ جوتے مروائے تھے۔ اور راستے میں جاتے ہوئے، حالانکہ اس وقت ہمارا جو ہے بہت سائیکل پر میں تقریباً اسلام آباد پہنچا اچ شریف سے، دربار حضرت محبوب سبحانی، مخدوم سید افتخار حسن گیلانی اور ان کے صاحبزادے ہیں مخدوم سید عمر گیلانی اور احمد گیلانی۔ تو انہوں نے میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ مجھے سائیکل لے کے دیں، میں نے خان صاحب سے ملنا ہے، تو انہوں نے مجھے سائیکل لے کے دیا کیونکہ وہ میں ان کے گھروں میں پلا بھی ہوں۔ سر یہاں پہ آپ نے لکھا ہوا کہ آپ بنی گالا سے زمان پاک سائیکل پہ آئے، اتنی محبت کی وجہ کیونکہ آپ نے سائیکل کو جو ہے اپنا ہم سفر منتخب کیا۔ سارا بات یہ ہے کہ سائیکل پر میں نے پہلے 750 کلومیٹر سفر کیا جنوبی پنجاب سے اور خان صاحب سے ملنے بنی گالا گیا، اور وہاں پر 7 دن کا سفر کر کے میں بذریعہ اوچ شریف، جلال پور پیروالا، شوجہ آباد اور پھر ملتان اور پھر کبیر والا، شورکوٹ، جھنگ اور پھر منی سائیوال، پھر گروڈ شہر اور خوشاب سے ہوتا ہوا میں کٹھا پہاڑ چڑھا تھا۔ عمران خان صاحب سے سر اتنی محبت کی وجہ کیا ہے؟ کیا وجہ کہ آپ نے مسلم لیگ نون کے جلسوں میں مارے بھی کھائی ہیں، پیپل پارٹی کے جلسوں میں مارے کھائی ہیں، کیا وجہ سر؟ بات یہ ہے کہ جو انسان کا نظریہ ہوتا ہے نا، نظریے کے ساتھ بندہ اگر کوئی پتنگ اڑا رہا ہے نا، تو اگر نظریہ نہ ہو تو کچے دھاگے سے پتنگ اڑا رہا ہے۔ میرا نظریہ ہے انسان دوست، اور ہم لوگ یہاں پر جتنے بھی آئے ہوئے ہیں سب کوئی ستایا ہوا ہے، کوئی کسی کا مارا ہوا ہے، کوئی فخر سے، کوئی غرور کے شکار ہوئے ہیں، سب مظلوم کٹھے ہو گئے ہیں۔ سن کر کپتان کی للکار کانپ اٹھے ہیں بد کردار، واہ، آگے پھندا پیچھے دار کانپ اٹھے ہیں بد کردار۔ اب چوروں کی خیر نہیں، بٹ ماروں کی خیر نہیں، جاگ اٹھا ہے تھانے دار، کانپ اٹھے ہیں بد کردار۔ جب سے شعور کا چہرہ چمکا ہے، ہلنے لگی ہے سرکار، کانپ اٹھے ہیں بد کردار۔ آگے پھندا پیچھے دار، کانپ اٹھے ہیں بد کردار۔ عمران خان صاحب سر اتنی محبت کی وجہ کیا آپ کی؟ کیونکہ سچ کو مرچا مچا سال ڈینین، سچا گالی ظالم دہاں سال ڈینین۔ ہمارے علاقے میں وڈیروں نے اور زمینداروں نے اور پوری دنیا میں یہ پولیس کلچر اور یہ سارا ہم لوگ اور میرٹ کی پامالی، اور میں اب چیمپئن پنجاب تھا میراتھن روس میں 1994 میں نے میٹرک کی اوچ شریف سے، ضلع بہاولپور سے، اور اس سے پہلے 92 میں نے پورا پنجاب میں ایتھلیٹکس کا ون کیا۔
लेकिन मेरिट की पामाली करते हुए मैंने पूरे ज़िले डिस्ट्रिक्ट विन करके लाहौर आया, यहाँ पर किसी और सर यहाँ पे किस मुफाद के लिए आप यहाँ पे आए? आप बता रहे हैं कि आप 90 रोज़ से जनाब अपने घर से जो है लापता हैं, घर को छोड़ के आ गए हैं आप, तो क्या आपको लालच क्या है यहाँ पे कि आप ज़माम पाक बैठे हुए हैं, क्या मुफाद है? हम अपने बच्चों की जंग लड़ रहे हैं, हम एक नज़रिए के साथ बैठे हुए हैं, क्योंकि वो कहते हैं ना कि मैं भी कोई गोलू के खामोश रहूँ, हम नवा मैं भी कोई गोलूँ नाले बुलबुल के सुनूं और हम वतन गोश रहूं। क्या ज़िंदगी में हम सिर्फ खा पी के कलर की कर डबल रोटी खा और खुशी से फूल जा? तो हम अपने कायद के मिशन के मुताबिक इंसान हैं। जब तक इंसानियत का दर्द हमारे अंदर नहीं होगा, जब तक हम किसी इंसान की तड़प को नहीं महसूस करेंगे, तब तक हम इंसान नहीं हैं। तो ये आपके जो भतीजे बैठे हुए हैं, ये आपके ओरिजिनल भतीजे हैं कि जनाब यह आपको इस सफ़र के दौरान मिले गए हैं? ये मुझे बनीगाला में मैंने इनको दरियाफ्त किया। जब मैं बनीगाला में पहुँचा तो ये वहाँ पर आए, मोटरसाइकिल पर आए और वहाँ पर झंडे लगाए हुए अपने, और उनकी तरह मेरी तरह का ड्रेस था। तो तब से मैं इनका फ़ैन हुआ हूँ और तब से मैं इनके साथ हुआ। और 10 महीने से फिर मैं बीच में घर गया, वापस आया, लेकिन ये तो 10 महीने से गया ही नहीं। तो सर इतनी मोहब्बत के आपने जनाब इनको भी अपने साथ लगा लिया हुआ, खुद तो आप अपने घर वालों को छोड़ के आ गए हुए हैं, खान की मोहब्बत के लिए आपने इनको भी अपने साथ कह दिया कि घर वालों को छोड़ दें। देखें, हमारे घर तो पहले से ही पुलिस की वजह से और हमारे हक, हमारी ज़मीनें, सारा कुछ छीनी हुई है। हमारे रकबे, हमारे साथ हमारी ज़्यादतियाँ, हमारे मुंह में शराबें डाल के पर्चे करा देना, मारते हुए वो करना, जो कुछ चाहना तोड़ कर देना। पुलिस का एक थानेदार जिस बंदे के साथ खड़ा है या इलाके का MP MNA का वो टाउट है, तो वो पूरे ज़िले में पूरी जगह पे बदमाश बन के फिरते हैं और ऐसे कहर बरसवाते हैं और लोगों के घरों तक के चट्टी दलाल चट्टे खा के उन्होंने मुल्क का, हमारा तो पहले कुछ नहीं बचा हुआ। इस मर्द कलंदर के साथ हम आके बैठे हुए हैं। हम अपनी पूरी दुनिया को, ये तो अखलाकी तौर पर यहाँ के हार चुके हैं। ये PDM CDM ये तो हमारी, इनकी अब औकात ही नहीं है कि खान के बराबर का निकलने वाला हो। हम दुनिया को मैसेज देंगे कि हम पीसफुल हैं, वी आर पीसफुल, क्योंकि उससे हमारा इमेज भी बढ़ेगा। हम जो कुछ कमाएंगे वो हम खुद खाएंगे। सर अभी आपने बताया कि आपको नून लीग के जलसों में आपको मार भी पड़ती थी। जलसों में नहीं, कहाँ पे? मैं आया हूँ, फ़र्ज़ करो PTI का जलसा है, किसी जगह पे भी जलसा है, तो मेरे साइकिल का ट्रैवल है, ये तो मेरे बहुत पूरी मेरी एक रुदाद है। तो रास्ते में मेरा किसी जगह पे कोई सामना हुआ है, यानी कि मैं लाहौर में आया तो यहाँ पर उस दौर में जब नून लीग की हुकूमत थी, तब किसी दौर में मेरे साथ तो 8, 10, 15, 20 बंदे ने मेरे साथ झगड़ा किया, तो तब भी मैं नहीं डरा। झगड़ा किस बात पे करते थे? क्या चीज़ होती? मेरा मकसद है कि मैं जब आऊँ तो मैं आते हुए कोई किसी जगह भी साउंड लगा हुआ है तो मैं अमर से शुरू हो जाता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, खान साहब के लिए, क्योंकि जितना भी इमरान खान जितना कोई सॉन्ग है, कोई तराना है, तो मैं उसमें जाके शुरू हो जाता हूँ। तो क्या कहते हैं वहाँ पे जाकर? मैं शुरू हो गया तो किसी जगह से कोई आवाज़, यानी कि जलसे पे जाते हुए आगे पीछे, तो उनमें से कुछ लोग उस दौर में गुल्लू भट्ट टाइप लोग भी होते थे। ये तो अब गुल्लू क्रेसी कुछ ख़त्म हुई है ना, ठीक है। अब नौजवानों ने वो किया है ना, अब शऊर आया है। तो ये 18 से भी पहले की बात है। तो उसमें जब हम लोग जाते थे तो तब ये लोग मिक्स के, ये लोग दोनों जरदारी माफिया और ये लोग आपको मारते थे? फिर मारते नहीं, झगड़ा हो गया तो किसी जगह पे, तो मुझे उन्होंने फ़र्ज़ करो मेरे साथ बिहेव ऐसा किया और कुछ हो गया, तो यानी कि फिर और आवाम भी आ गई साथ में, तो किसी ने डंडा मार दिया या किसी ने वो कर दिया, तो तब भी बर्दाश्त। भतीजा जी आप बताएं, जनाब चाचू जान ने आपको दरियाफ़्त की है, आपके दिल में खान साहब के लिए इतनी मोहब्बत क्यों है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाईजान मैं एक वारसी पाकिस्तानी हूँ, मैं सऊदी अरब में रहा हूँ, तकरीबन मुशर्रफ दौर में मैं उधर रहा हूँ। और ख़ान साहब के लिए ख़ास तौर के मैं हर जुमे जाता था जुम्मा पढ़ने के लिए काबा शरीफ में, तो मैं दुआएं मांगता था। मज़दूर की, पाकिस्तानी की बाहर में कोई इज़्ज़त नहीं है, ठीक है ना। हमें जो है ना वो घर की जैसे लोभी होती है ना, ऐसे समझते हैं, और कोई इज़्ज़त वसीयत नहीं है। हम जैसे जो है ना किसी लड़की को ब्याह देते हैं ना, तो हमारे साथ भी ऐसे हो जाता है। सर आपको लगता है कि इमरान खान साहब इज़्ज़त दिलवाएंगे? इंशाअल्लाह इमरान खान पे हमें 100% यकीन है। इमरान और सच्चा और लीडर है और पूरी उम्मत का लीडर है और पूरे मुसलमानों का उसने नाम रोशन किया है। तुम्हारा हमारा क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, और हमारा रिश्ता एक है। लेकिन ये हमारी कौम बिगड़ी हुई है। आज जो है ना, आज एक दूसरे के हम दुश्मन बने हुए हैं। घर का है तो उसका झगड़ा है, जो बीवी है तो वो अपने यानी कि घर वाले से लड़ रही है, जो ससुर है कि यानी कि इतना अफरा तफरी आ गई है। क्या है, सिर्फ सब महंगाई की वजह है, ठीक है। सर आप यहाँ पे कब तक रहेंगे?
इंशाअल्लाह खान साहब ये लिखा हुआ है, जब तक कि खान साहब की हकीकी आज़ादी, खान साहब को हम प्राइम मिनिस्टर की सीट पे नहीं बिठाएंगे तब तक हम घर नहीं जाएंगे। सर आपकी तस्वीर देख लो कि आप खान साहब से बड़ी ज़ोर से जफ्फी डाल के खड़े हुए हैं, ये तस्वीर कब की और खान साहब से क्या गुफ्तगू हुई थी आपकी? जी बिल्कुल, मैं जब साइकिल पर बनीगाला पहुंचा था खान साहब के लिए, तो खान साहब को पता चला, तो मैं जब ऊपर गया तो खान साहब ने मुझे बुलाया और वहाँ पर मुझे पिज़्ज़ा भी खिलाया। और मैंने जब मैं गया तो मैंने नारे इमरान जिए इमरान के नारे इतनी तो क्या जज्बात से कहा खान साहब ने आगे से पे? तो खान साहब मुझे जलसों में रेली में मैं बाइक पे पीछे खड़ा हो जाता हूँ और मोहब्बतों से ना चलती, क्योंकि मैं एथलेटिक्स करता था, चैम्पियन था, मैराथन भी रेस भी थी, तो मैं चलते हुए मोटरसाइकिल पे पीछे खड़ा होकर, जब मैं 10 साल पहले में जब रैलियाँ होती थी, अलीम खान तब हमारे साथ होते थे, कोई और होते थे, तो जो थे खैर हमें, तो तब खान साहब ऊपर से मुझे देखता था, मेरी मोहब्बत को, मैं जल से रैलियों में हर रैली में आता था, तो खान साहब ने मुझे कहा कि आई प्राउड ऑफ यू, मुझे तुम पर फ़ख्र है। तो तब तक मुझे उस इश्क और उस लज़्ज़त और उस मोहब्बत की देख लें कि आज तक मैं जहाँ भी जाता हूँ तो मुझे वो मोहब्बत अभी भी मेरे दिल में खड़ी हुई है, क्योंकि अब खान आलम इस्लाम का लीडर हो चुका है और पूरे आलम इस्लाम को यकजा करेगा। वो भुट्टू वाली सोच है, ये सारे माफियाओं को सिर्फ खान साहब की एक फ़ोटो चाहिए जेल में, और कुछ भी नहीं चाहते ये लोग। ये चाहते हैं कि किसी तरह खान साहब की एक जेल में फ़ोटो हो जाए और जो लोग बैठे हैं उसको जेल में, लेकिन खान साहब बग़ैर किसी, इंशाअल्लाह हम खड़े हुए हैं, वो मुजरिम, वो डाकू जेलों से बाहर हैं, दवाई लेके देने के लिए गए हुए हैं, और खान साहब को जेल तक ले जाना इनके बस की बात है। सर आखिर में खान साहब को क्या पैगाम देंगे आप? खान साहब, मैं लोधरा से, ये डीजी खान से, मैं यहाँ पर इतने अरसे से रह रहा हूँ, यहाँ पर ना कोई सिंधी है खान साहब, ना कोई बलोची है, ना यहाँ पर कोई पठान है, ना यहाँ पर कोई आज़ाद कश्मीर वाला है, ना कोई गिलती, सब लोग नुमाइंदगी ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन ये एक ऐसे कौम की तरह एक दूसरे के साथ मोहब्बत करने वाले और दिलों को जीतने वाले लोग का यहाँ पर रहते हैं। जो नज़्म ज़ब्त मैं यहाँ पर देखता हूँ, जो मोहब्बत मैं यहाँ पर देखता हूँ, यहाँ पर नौजवान, माएँ, बहनें, बेटियाँ, और यहाँ पर 500 घर हैं। खान साहब, यहाँ पर किसी बंदे को कोई तकलीफ़ नहीं है। आप कमाल हैं, आप अजीब आदमी हो कि कहते हो ड्रोन आए तो गिरा दो। एब्सोल्युटली नॉट। मैं किसी जंग में शरीक नहीं हूँगा, मैं अपने लोगों की सोचूंगा, मैं अपने लोगों के लिए मैं हर कोशिश करूँगा। मैं कमाल है, हम आपके साथ हैं। अब 5 सूबों की पहचान, पहले 4 होते थे, अब गिलगित बल्तिस्तान वाला हमारा सूबा है, तो 5 सूबों की शान इमरान खान। सर आप क्या पैगाम देंगे? जी, मैं आखिर तक मेरी बात तो पूरी करने नहीं दी, लेकिन ये जो है ना, मैं देख के नवाज शरीफ की फैक्ट्री है सऊदी अरब में, ठीक है, उधर टोटल इंडियन काम कर रहे हैं, पाकिस्तानी लिखा हुआ है ममनू। जो हमारे वोट लेता हो तो वो पाकिस्तानी को ममनू करता है, और हमारी इसने इज़्ज़तें ख़राब की हैं। और खान साहब जो आया, जब उसने बोला है सऊदी अरब को आपको क्या चाहिए, उसने बोला जो मेरे गरीब जेलों में हैं वो मुझे चाहिए। इस बंदे के लिए हमारी जान भी हाजिर है, और ये तो 10 महीने हैं, हमें 10 साल भी लगने चाहिए ना, हम अपने मरने मिटने के लिए खड़े हैं और खड़े रहेंगे आखिर तक। अपने बच्चों के लिए निकले हैं, अपने मुस्तकबिल के लिए निकले हैं, अपनी इस मिट्टी के लिए निकले हैं, और खान साहब ने हमें सिर्फ आंखें दिखाई हैं, हमें एक रास्ता दिखाया है। ये लोग उसके दुश्मन हो गए हैं, इस वजह से हमने आए उस पे पहरेदारी कर रहे हैं, और मुसलमानों का हक है अपने हक के लिए उठें। ये अभी छोड़ दें, ये नहीं है ये नवाज शरीफ या इमरान खान, ये मुल्क की अभी बात है। इस मुल्क को बचाएं, और पूरे हम जैसे मैं गरीब बंदे निकला हूँ, मैं 10 महीने हो गए, मैं किसी से पैसे नहीं लिए, ना मैं किसी से पैसे से आया हूँ, मैं अपनी मर्ज़ी से आया हूँ, और इधर मैं कैंप लगा के बैठा हूँ। जो भी मेरा साथी आता है दूर दूर से ना, जिसकी जगह नहीं होती मैं उसको जगह देता हूँ, उनकी इज़्ज़त करता हूँ, क्यों, ये मेरे खान के सिपाही हैं। और हम सब का ऐसे होना चाहिए, एक दूसरे में मोहब्बत होनी चाहिए। और मेरा पैगाम ये है, अब तो नहीं जागे, अब तो पटवारियों जाग जाओ, खुदा के लिए अपने मुल्क को बचाओ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।